Assalamualaikum everyone, welcome to the physics class and my YouTube channel Afaz Zafar. Hope so you all are well. So guys, as we know that in the previous class what we have done, we have discussed about the three gas laws and we made the general gas equation with the help of those three laws like Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. We made the equation PV equals to nRT and also we have calculated the value of R. With the help of which formula? PV equals to nRT. In today's class we will discuss about the totally new topic, that is about the anomalous expansion of water. And yeah guys, maybe today it's my last video and it's my last lecture of physics because now your physical classes are about to be start maybe from Monday, I think from 18th of the Jan. And yeah, maybe your upcoming phase will be the most challenging and very difficult for you guys, but you need to fight it out. You need to go through a very difficult time. As a teacher, I would like to suggest you that don't take as a burden, don't take as a stress. Whatever have in your mind, just do with your happiness and with your smile. One thing more that you should keep in your mind and always keep in your mind, that process is more important than the result. So work on the process, don't think before about the result. If you work on the process, if you make a plan in your mind, if you work for that, so I don't think so you will not get the desired result. You will get the very better result. Let's suppose if you don't get the desired result, so change your plan, execute in the better way. Inshallah you will get a chance to prove yourself again. So never give up any time. Whatever have in your mind, just do with your happiness. And yeah, one thing more that is very important, that you at least you should have a target in your mind, that what I am supposed to do, what extra I can do. So just do in a very simple way. Devote yourself to something and just be focused on that. It's the ethics and the principles that matters in our life. Then you will realize that your life is very easy for you and you can make your life in a better way. So just you need to remember these things which I have discussed with you. Okay guys, by the way, very best of luck to all of you, and wherever you go, God bless you. Okay students, so we were learning about the anomalous expansion of water. As we have observed in our daily life that water have too many properties, but today which property which we are going to discuss, that is the unusual property. Like आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके बारे में है? अनयूजुअल प्रॉपर्टी, कि वाटर जो है अपनी अनयूजुअल प्रॉपर्टी कैसे शो करता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट हाउ इट शोज द unusual property. So let's take a start from one example. Let's suppose you have a water bottle and you completely fill with the water. आप एक पानी की बोतल लेते हैं, उसको पूरा completely fill कर लेते हैं पानी के साथ, उसके अंदर थोड़ी सी भी स्पेस ना रखें. Then you need to keep in the freezer. अगर आप उसको फ्रीज़र में रखें तो होगा क्या? आफ्टर सम ड्यूरेशन दैट बॉटल विल बी बर्स्ट. वो बॉटल क्या हो जाएगी? फट जाएगी. ऐसा क्यों होता है? सो नाउ वी विल लर्न कि ऐसा क्यों होता है, दैट व्हाई वाटर शोज द अनयूजुअल बिहेवियर. सो वी विल डिस्कस. सो स्टूडेंट्स, लेट सपोज आई एम टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. ये मेरे पास लेट सपोज पानी है, इसको मैं पानी कह देता हूँ. एंड ऑब्वियसली देयर आर सम मॉलिक्यूल्स इन द वाटर. यहाँ पे इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स भी हैं, उनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है. नाउ आई एम गोइंग टू कूल इट. मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ? ठंडा करने जा रहा हूँ. फाइन, आई एम गोइंग टू डाउन इस टेम्परेचर. मैं इसका टेम्परेचर डाउन करने जा रहा हूँ, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने जा रहा हूँ. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इफ़ यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर, नॉर्मली अगर हम देखें जब आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर डाउन करते हैं या उसको डिक्रीज करते हैं तो होता क्या है कि वो चीज़ जो होती है सुकड़ जाती है. इट मीन्स दैट थिंग विल शो द कॉन्ट्रैक्शन. सो ऑब्वियसली इफ आई एम गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर एंड लेट सपोज आई एम टेकिंग एज रूम टेम्परेचर, जो इस पानी का टेम्परेचर है वो क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस. मैंने एक रूम टेम्परेचर पे इस पानी को लिया, अब मैं उसको ठंडा करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? ऑब्वियसली
कोई भी चीज़ आप ठंडी करते हैं तो उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाता है, थोड़ा और कम हो जाता है। मज़ीद उसको ठंडा करेंगे, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और कोई भी चीज़ अगर मैं इसको अपोजिट ले लूँ, इसको गर्म करने पे, लाइक इफ़ यू हीट अप दैट थिंग, आप उसको टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो चीज़ क्या करती है, एक्सपैंड। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द थर्मल एक्सपेंशन एज वेल दैट if we give heat or temperature to any body or any object, that thing will be expand. But if we down the temperature, if we decrease the temperature, so that thing will be small. Let's suppose मैंने इसको यहाँ पे temperature down किया, so ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पानी जो मैंने लिया था, ये क्या हो गया, इसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। दिस इज द वाटर एंड now the distance of molecules are very close. So look है, यहाँ पे मतलब क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हुई। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या हो जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सो इट मीन्स इट शोज द कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर। ऑब्वियसली यू नो दैट दिस इज द नॉर्मल थिंग। हम किसी भी चीज़ को ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो क्या होती है, वो चीज़ सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। But guys, here most interesting thing is that it will be happen till 4 degree Celsius. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये अपना पानी जो है नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस उसका जब टेम्परेचर था, हमने पानी को ठंडा करते गए, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, इट मीन्स आफ्टर दैट द प्रोसेस विल बी चेंज। जो प्रोसीजर होगा, जब ये अपना इसने बिहेवियर शो करना है, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड नाउ द ट्विस्ट विल बी स्टार्ट इन अवर स्टोरी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। नाउ यू विल सी इफ आई एम गोइंग टू कूल इट अगेन। मैं इसको दोबारा ठंडा करने जा रहा हूँ, तो दोबारा ठंडा करने से क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, लाइक इफ आई एम गोइंग टू डाउन इट टेम्परेचर अगेन। अच्छा, होना तो क्या चाहिए, जब मैं इसको दोबारा ठंडा कर रहा हूँ तो ये मज़ीद छोटा हो जाना चाहिए, ये ऐसे हो जाना चाहिए थोड़ा सा। फाइन, रिजल्ट में तो ये होना चाहिए ना कि कोई भी चीज़ इतनी ठंडी करते हैं क्योंकि उसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होता है दैट विल बी वेरी लेस, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है वो चीज़। जैसे यहाँ से मैंने यहाँ पे ये चीज़ स्मॉल हो गई। अब इसको अगर मैं मज़ीद ठंडा करूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू कूल इट अगेन, सो अगेन इट विल बी वेरी स्मॉल, बट इट विल नॉट बी हैपन। वाई? बिकॉज इट विल बी टिल 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब जब मैं इसको ठंडा करूँगा तो रिजल्ट में हमें क्या मिलना है, रिजल्ट में हमें दोबारा एक्सपेंशन मिलेगी। इट मीन्स इट विल बी बिग अगेन। सो वाटर दोबारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। अगेन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट थिंग विल बी एक्सपेंड। वाटर क्या कर गया, एक्सपेंड। So tell me guys, this is the normal behavior? No, normally अगर देखा जाता इसको मैं ठंडा करता तो इसका साइज कम हो जाना था, बट इसने इसका मतलब नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं किया। इट मीन्स इट शोज द अनयूजुअल, व्हाट, अनयूजुअल बिहेवियर, और इसी का नाम है एनोमलस एक्सपेंशन। एनोमलस एक्सपेंशन का मतलब ही यही है कि अनयूजुअल। यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस से पानी ने अपना एक दूसरा लेवल दिखाया। मतलब दूसरा लेवल का मतलब इसने अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो की, अनयूजुअल। फाइन, अब देखें, लेट सपोज 4 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। फाइन, लेट सपोज आई एम गोइंग टू कूल इट अगेन। मैं इसको दोबारा एक बार ठंडा करने जा रहा हूँ, तो होगा क्या, एज वी नो दैट 0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 क्या है, पानी का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। इससे नीचे तो टेम्परेचर आएगा ही नहीं। हाँ, अगर मैं इसको मज़ीद ठंडा करता हूँ, टेम्परेचर तो सेम रहेगा, बट इट विल चेंज इन विच फॉर्म, इट विल चेंज इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। मतलब क्या है, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। जब मतलब कहने का ये, टेम्परेचर तो इसमें भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बट क्या है, इसका जो फेज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका फेज लिक्विड था,
but here it will be solid. Fine. So thus the change will be in phase. तो यहाँ पे देखें 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे किसने चला गया, जस्ट इसका फेज चेंज हो जाएगा, दैट विल बी सॉलिड फेज. तो कहने का मतलब ये है, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस यू हैव नोटिस वन थिंग, that it will show the expansion. Here it will also show the expansion. expansion आएगी तो क्या होगा, molecules मजीद क्या होंगे, आपस में दूर होते जाएंगे एक दूसरे के साथ. So it means the distance will be very far. But distance सबसे ज़्यादा close किस में हो सकता है, possibility इसमें होगा molecules के दरमियान. क्योंकि यहाँ से अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि अगर आप इसको ठंडा करें या इसको गर्म करें, दोनों सूरत में क्या होगी, एक्सपेंशन होगी. बट 27 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा हूँ तभी क्या होगा, सिर्फ हमें कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी. आफ्टर दैट जब मैं इसको दोबारा उस चीज़ को ठंडा करने के लिए दोबारा करूँगा, देन इट विल शो द अनयूजुअल प्रॉपर्टी in which we can easily say that is also known as that the anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. Okay guys, now let's see the consequences, or you can say the effects, that what kind of nature water shows in our daily life. So we will see the consequences, or you can say effects. So our first consequence is, okay, we start from here. This is the 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अगर यहाँ से मैं टेम्परेचर को डाउन करता हूँ, इफ़ यू हैव नोटिस वन थिंग, कि यहाँ से अगर मैंने टेम्परेचर को डाउन किया, इसको कूल किया, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या मिली, एक्सपेंशन मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ अनयूजुअल प्रॉपर्टी. हमने देखा कि हमें उसकी जगह क्या मिली, एक्सपेंशन. मतलब वो जो उसका साइज़ है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया. एंड किसी भी चीज़ को अगर आप नॉर्मली गर्म करते हैं तो वो तो वैसे ही एक्सपेंशन होगी. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर मैंने इसको ठंडा किया पानी को, तो मुझे कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या मिली, एक्सपेंशन. और गर्म करने पे तो वैसे ही मुझे एक्सपेंशन मिलेगी. तो मतलब दोनों केसेस में मुझे क्या मिल रही है, एक्सपेंशन. इफ़ आई एम गिविंग अ टेम्परेचर, इफ़ आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो इन द बोथ केसेस आई एम गेटिंग द एक्सपेंशन. और जब किसी भी चीज़ के दरमियान एक्सपेंशन ज़्यादा होती है तो मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. अब कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा डेंसिटी का. सो व्हाट इज़ द डेंसिटी, दैट इफ़ देयर विल बी अ, आई एम टेलिंग यू इन ईजी वर्डिंग, लाइक इफ़ देयर विल बी अ डिस्टेंस इन मॉलिक्यूल्स, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी लेस, जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होगा, वो उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. और जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होती है. सो इट मीन्स यहाँ पे जो पानी की डेंसिटी दी थी क्या थी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा तो डेंसिटी कम. बट हेयर डिस्टेंस इज लेस, सो डेंसिटी विल बी मोर. बट इफ आई विल कूल इट अगेन, सो इट शोज अगेन एक्सपेंशन. If expansion is there, so obviously distance of molecules will be also very far from each other. So here density will also low, क्योंकि यहाँ पे भी molecules के दरमियान distance क्या है, ज़्यादा है, तो molecules के दरमियान distance ज़्यादा है, density कम. So it means in which case density is more, in which case at 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे ही molecules के दरमियान distance क्या है, कम से कम है. So the our first consequence is that maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है हमारे पास, that is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और ये सबसे मैक्सिमम होती है. अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर से डाउन करें या 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करवाएं, तो बोथ केसेस में डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों केसेस में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब पानी में, इफ़ यू विल टेक द अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ 1 मीटर क्यूब, इन वेट ऑफ वाटर विल बी 1000 किलोग्राम. क्या मतलब है, अगर आप 1 मीटर क्यूब पानी के अंदर उसका पानी का वज़न चेक करेंगे तो वो पानी का वज़न कितना होगा,
1000 kilogram and it's the maximum weight of the water. So students, if you decrease the temperature or you increase the temperature, in the both cases you are getting the expansion. एंड एक्सपेंशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी डेंसिटी कम होगी और जितनी एक्सपेंशन कम होगी उतनी ही डेंसिटी ज़्यादा होगी. तो अब आपने इस केस में देख लिया कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा पॉइंट था जिसमें हमें डेंसिटी क्या मिली, मैक्सिमम मिलेगी बिकॉज ऑफ द लेस डिस्टेंस इन द मॉलिक्यूल्स. नाउ वी विल सी द सेकंड पॉइंट, दैट व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट. इन सेकंड पॉइंट मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट लेना है कि भाई अगर 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर मैक्सिमम डेंसिटी है, so obviously if I will cool it again, so it will show the minimum density. If I will going to cool it more, so it means its density will be very very less. क्या मतलब है कि यहाँ पे जब मैंने इसको ठंडा किया तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन. बट हेयर इफ़ आई विल कूल इट अगेन, मज़ीद ये क्या होगा, जब मैं इसको ठंडा करूँगा, जब इसका फेस चेंज हो जाएगा किसके अंदर, आइस के अंदर, मतलब सॉलिड के अंदर, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इन द मॉलिक्यूल्स. तो इसका मतलब क्या है, हमने इसके दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट द डेंसिटी ऑफ आइस इज मिनिमम देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. क्या होती है, मतलब जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है लेस होती है किससे, वाटर से, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ टू मच एक्सपेंशन इन द मॉलिक्यूल्स. तो आप लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी of ice less than the density of water. क्योंकि आपने खुद देख लिया कि सबसे कम इस, क्योंकि लास्ट में ही हमारे पास बर्फ़ बन रही है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हमें यहाँ पे ही शो होती है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. और ये वाहिद एक ऐसा सॉलिड है जिसमें आप देखेंगे कि डिस्टेंस मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन बाकी जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं, लाइक आप कोई लोहा ले लें, कोई नीडल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, तो उनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल कम होता है. क्यों? क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं. इवन बहुत जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हमने देखे उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत करीब करीब होते हैं मॉलिक्यूल्स. बट ये वाहिद ऐसा सॉलिड है जिसमें आपको डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ मोर एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ दिस अनयूजुअल प्रॉपर्टी. सो सेकेंड पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. नाउ वी विल सी द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, दैट our aquatic life can easily survive. क्या मतलब है इसका, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है इजीली सर्वाइव कर सकती है कौन से सीजन में, इन विंटर में. ओके गाइस, सो एक्वेटिक लाइफ कैन इजीली सर्वाइव इन विंटर सीजन. हम विंटर सीजन के अंदर जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है ये सर्वाइव कर लेती है. कैसे? लेट सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. आई हैव अ फिश पॉन्ड. ये मेरे पास एक पॉन्ड बना हुआ है, तालाब जो है जिसको कहते हैं उर्दू में. इफ़ यू विल सी, ऑब्वियसली देयर इज सम अमाउंट ऑफ वाटर. ये पानी से भरा पड़ा है, ठीक है. अब आप देखेंगे क्योंकि विंटर में क्या होता है, विंटर में जो लेट सपोज इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा कूल है, उसका टेम्परेचर है, लेट सपोज बाहर का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस के करीब तरीन. नाउ यू विल सी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो पॉन्ड के ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या होना चाहिए, बर्फ़ बन जाना चाहिए. इट मीन्स इट विल बिकम आइस. और जब आइस बनने चाहिए तो जाहिर सी बात है, जब आइस बनेगी तो वो ये वाली आइस नीचे आती जाएगी, फिर ऊपर और आइस बनेगी, फिर वो नीचे आती जाएगी. करते करते ये पूरा फिश पॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, आइस के अंदर चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे तो जितनी भी मछलियाँ हैं, कोई भी चीज़ है, वो मर जानी चाहिए. बट ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, इट विल नॉट बी हैपन. वाई? लेट सपोज देयर इज अ फिश इन द पॉन्ड. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. लेट सपोज दिस इज़ अ फिश, फाइन. अब यहाँ पे अगर देखें इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कूल है, लेट सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. अब होगा क्या, यहाँ पे जब वो चीज़ बर्फ़ बनेगी, यहाँ पे जब आइस बनेगी, तो उससे होता क्या है कि
वहाँ पे क्योंकि आपको पता है जो आइस की डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। आपने अभी मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या मतलब है, जो आइस की डेंसिटी होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके गाइस, इफ़ यू नोटिस वन थिंग दैट इफ़ यू पुट द आइस इन वाटर, जब आप बर्फ़ को पानी के अंदर डालते हैं, सो व्हाट यू विल सी द रिजल्ट, कि देखते हैं आप बर्फ़ पानी के अंदर तैरती है। ऐसा क्यों होता है? सो यू विल फाइंड द आंसर इन द सेकेंड पॉइंट। क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो जिसकी वजह से जो बर्फ़ आप पानी के अंदर डालते हैं वो क्या होती है, तैरती रहती है। और इवन अगर आप इतनी छोटी सी नीडल ले लें, छोटी सी नीडल होती है, सुई जो होती है जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसको पानी में डाल दें, हालांकि जो सुई का वेट है, जो नीडल का वेट है, वो क्या होता है, वो तो बहुत कम होता है बर्फ़ के मुकाबले में, लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर फ़ौरन सिंक हो जाती है, बट इट विल फ्लोट। लेकिन जो बर्फ़ है वो क्या होती है, डेंसिटी कम होने की वजह से क्या करती है, ऊपर फ्लोट करती है। हालांकि बर्फ़ का जो वेट होता है, बर्फ़ का जो वज़न होता है वो ज़्यादा होता है किसकी, नीडल की निस्बत। जाना तो बर्फ़ को चाहिए नीचे, लेकिन बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है, बट नीडल जो है उसके ऊपर नीडल जो होती है क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी आइस विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ गया तो ये चीज़ यहाँ पे जो ऊपर वाली आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहेगी और नीचे जो होगा सारा पानी रह जाएगा, एंड फिशेस कैन इजीली सर्वाइव। जो भी चीज़ पानी के अंदर रह रही हैं, जो चीज़ें हैं, वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगी। So that's the reason that our aquatic life can easily survive. So guys, in the start I asked one question. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप पानी की बोतल लें और उसको कम्प्लीटली फिल कर लें पानी के साथ और उसको आप फ्रीज़र में रख दें तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर बाद फट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? Now you can easily find the answer in this whole area if you have done this job properly. अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको खुद ही बता देंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यू कैन ईजिली फाइंड द आंसर एंड यू नीड टू फाइंड द आंसर, और आपको ये आंसर सर्च करना है। ओके गाइस, सो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द दैट हाउ वाटर एंड आइस शोज द अनयूजुअल बिहेवियर, एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज that where at which temperature the maximum density is. You need to remember 4 degrees Celsius because many times it came in the MCQs कि MCQs में पूछा जा सकता है कि भाई at which temperature water shows the maximum density. So you should know that at 4 degrees Celsius. ठीक है, और सबसे कम डेंसिटी किस पे होती है? ऑब्वियसली एट आइस। जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो वो सबसे क्या होगा, मिनिमम डेंसिटी, सॉरी, वो क्या शो करेगा, सबसे मिनिमम डेंसिटी कब शो करेगा, जब वो आइस की फॉर्म में होगा, जब आप कह सकते हैं कि उनके दरमियान एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम हो जाती है। एंड द थर्ड पॉइंट, वी हैव नोन दैट आवर एक्वेटिक लाइफ कैन ईजीली सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ this reason. You know that the density of ice is less than the density of water. So that's about the today lecture. I hope you understood, and you need to find out that answer which I have asked in the start of my video, that is that if we fill the water bottle completely and if we put in the freezer, that will be burst. So why it will be happen? But don't do the experiment in your home. आपने घर में ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वरना अगर बॉटल फट गई तो फिर आपको डांट पड़ सकती है, इवन मार भी पड़ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो विद माय बेस्ट विशेस आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो, एंड आई होप दैट वट एवर आई गिव द सजेशंस इन द स्टार्ट ऑफ माय वीडियो you will apply in your life, and literally I am telling you, then you will enjoy your life. So we'll see you soon inshallah, and wish you all the very best, and Allah Hafiz.